السلام علیکم، صبا ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی میں فنڈز کی مبینہ تقسیم بارے از خود نوٹس کیس کے معاملے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے۔ 28 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں انتہائی اہم معاملات اٹھائے ہیں۔ اس میں 20 نقائص کی نشاندہی کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور استعفیٰ دینے پر اس نے کیوں غور کیا، لیکن استعفیٰ کیوں نہیں دیا، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھی ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 28 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب سپریم کورٹ میں آئین سے متصادم ایک بات اخبارات میں رپورٹ ہونے کا نوٹس لیا، تاہم اس کا اختتام غیر متوقع تھا۔ مبینہ الزام کی مناسب تفتیش نہیں کی گئی، جبکہ سپریم کورٹ کے ایک جج کو اس کی آئینی ذمہ داریوں سے روک دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 3 فروری کو 2 رکنی بینچ کا وہ حکم نامہ بھی شامل کیا ہے جو انہوں نے اور جسٹس مقبول باقر نے جاری کیا تھا۔ اس میں انہوں نے 4 سوالات اٹھائے تھے جن کا جواب رجسٹرار سے مانگا گیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس مقبول باقر کو 5 رکنی لارجر بینچ میں شامل نہ کرنے پر چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، اس کا متن بھی شامل کیا ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ بعد میں جب چیف جسٹس نے 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کے لیے مقرر کیا، اس میں چیف جسٹس خود شامل ہوئے، جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شامل کیا، لیکن بینچ کی تشکیل میں جسٹس مقبول باقر کو شامل نہ کرنے پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اعتراض اٹھاتے ہوئے 10 فروری کو چیف جسٹس کو یہ خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے دکھ ہوا کہ آپ نے ابتدائی سٹیج پر 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، حالانکہ 2 رکنی بینچ نے 3 فروری کو قرار دیا تھا کہ عدالتی نوٹس آنے پر جوابات کے بعد یہ جائزہ لیا جائے گا کہ یہ معاملہ ختم کرنا ہے، یا اگر معاملہ آئین و قانون کے مطابق نہ ہوا تو اس کو مزید بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور اس معاملے کو آگے بڑھانا پڑا تو معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا جائے گا تاکہ وہ اس کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس سے کہا ہے کہ اس سطح پر آپ نے بینچ میں خود کو شامل کیا جب 2 رکنی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہا تھا۔ آپ نے اس عدالت کے 2 سینئر ججز پر سرعام عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا کر ان کی تضحیق کی ہے۔ یہاں انہوں نے ریڈیکیول کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ 3 فروری کے حکم میں پہلے سے موجود ایک کیس کی نظیر کی روشنی میں عدالت نے عوامی مفاد اور قومی خزانے کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے حکم جاری کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں مزید کہا ہے کہ میں اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اب جب کہ اہم آئینی ایشوز کی سماعت ہو رہی ہوتی ہے تو سینئر فاضل ججز کو بینچز سے الگ کر دیں، اس طرح نہ تو ادارے اور نہ ہی عوام کی خدمت ہو رہی ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں، چیف جسٹس سے یہ مخاطب ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور کہتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے کہ آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ میں نے بطور وکیل 27 سال کام کیا ہے اور 5 سال سے زائد عرصہ تک بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ میں آئینی امور پر کام کیا ہے۔ یہ عدالت اکثر اپنا ثواب دیدی اختیار استعمال کرتی ہے۔ اہم آئینی معاملات کی سماعت کے لیے بینچ تشکیل دینے کے لیے بھی انسٹرکچرڈ ثواب دید کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کو مزید لکھا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں آئین اور اس ادارے کے وقار کا تحفظ اور دفاع کروں، جس کو آپ نے ابھی نوٹ کیا ہے کہ میں نے عدالت میں سرعام بینچ کی تشکیل پر اعتراض نہیں کیا، یعنی جب 5 رکنی بینچ وہ سماعت کر رہا تھا تو اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ میں یہ خط لکھنے پر معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر میں نے یہ نہ کیا تو یہ میرے ضمیر اور حلف کے ساتھ بے وفائی ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس خط کی کاپی جسٹس مقبول باقر اور 5 رکنی بینچ کے دیگر ججز کو بھی بھجوائی تھی۔
जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा है, फैसले में लिखा है कि चीफ जस्टिस ने इस खत का जवाब नहीं दिया और ना ही ज़बानी तौर पर यह बताया कि उन्होंने 2 रुकनी बेंच की तश्कील 9 क्यों की और जस्टिस मकबूल बाकर को क्यों 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं किया। जिस फाइल के ज़रिए बेंच की तश्कील 9 की गई थी, जस्टिस काजी फायज ईसा लिखते हैं कि उस फाइल से ये इंकशाफ होता है कि ज़बानी हिदायत पर यह मामला 4 फरवरी को चीफ जस्टिस के सामने लाया गया और चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म जारी किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मज़ीद लिखा है कि इस तरह बेंच की तश्कील नामुनासिब है क्योंकि इससे गैर ज़रूरी सवालात पैदा होते हैं और लोग पेशीन गोइयाँ करते हैं कि इस केस से कोई गैर मामूली मफाद वाबस्ता है। अगर ऐसे सवालात का जवाब सामने ना आए तो मुल्क के अदालती निज़ाम पर अवाम का एतमाद कम होता है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने 5 रुकनी लार्जर बेंच की तरफ से जारी हुक्मनामे को भी इस इख्तलाफी नोट में शामिल किया है, जिसमें केस 11 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि 10 फरवरी के हुक्म में ये नहीं कहा गया था कि अदालत का कोई फाजल जज वो केसेस नहीं सुन सकता जिनमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुलव्वस होंगे, और सबसे अहम ये कि अटार्नी जनरल सूबाई या वफाकी ला अफसरान में से यानी एडवोकेट जनरल्स जो होते हैं सूबों के और वफाक के, उनमें से किसी ने ये एतराज़ नहीं किया था। इसलिए कोई ऐसी बुनियाद नहीं है कि हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया जाए या ज़ाहिर किया जाए कि जानिबदारी या इस जानिबदारी की या इसमें जानिबदारी में कमी नज़र आ रही है, जैसा कि बाद में चीफ जस्टिस की तरफ से इस अदालत के जज यानी जस्टिस काजी फायज ईसा से ये मंसूब किया गया कि वो उनकी जानिबदारी नज़र आ रही है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इख्तलाफी नोट में मज़ीद लिखा है कि उन्हें 10 फरवरी को एक खुफिया मैसेज मोबाइल पर मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि वफाकी हुकूमत ने कौमी असम्बली के हल्का NA 65 में तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन को जारी किए हैं और मैं इस हवाले से हुकूमत के नोटिफिकेशन आपको भेज रहा हूँ। यानी ये भेजने वाले ने जस्टिस काजी फायज ईसा को लिखा था। उसकी तस्दीक ऑडियो पैगाम के ज़रिए भी भेजने वाले ने की। जस्टिस काजी फायज ईसा लिखते हैं कि जो 4 दस्तावेज़ात उनको भेजी गई थी वो हुकूमत पाकिस्तान के महकमा पब्लिक वर्क्स PWD जिसको कहते हैं उनकी थी, और जिसमें चकवाल की तहसीलों की यूनियन कौंसल्स की तफसीलात भी मौजूद थी। ये दस्तावेज़ात फाजिल जजेस और ला अफसरान के सामने पेश की गई। इन दस्तावेज़ात की वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों से तस्दीक की जानी थी। अगर हुकूमतें ये तस्दीक कर देती कि ये दस्तावेज़ात दुरुस्त नहीं है तो ये मामला ख़त्म हो जाता, लेकिन अगर वो दस्तावेज़ात दुरुस्त होती हैं तो यह वजाहत लेने की ज़रूरत थी कि आइन के ख़िलाफ़ ये फ़ंड्स तकसीम क्यों किए जा रहे हैं। जिस दफ्तर या अफसर की जानब से ये दस्तावेज़ात जारी की गई उसके दस्तखत भी थे और नाम भी उन दस्तावेज़ात पर था। इनको अटार्नी जनरल के दफ्तर से फ़ोन करके मालूमात हासिल की जा सकती थी कि वो दस्तावेज़ात असली थी या नहीं। सेनेट इलेक्शन के बारे में जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा है कि मार्च में सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लिमान को उनके हल्कों के लिए 50 करोड़ रुपए के तरक्याती फ़ंड जारी करने का ऐलान किया है। दस्तावेज़ात से ये भी पता चलता था कि वज़ीर आज़म ने अपना वादा पूरा किया है। दोनों तरफ की सियासी जमातें एक दूसरे पर वोटों की खरीदारी का इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी धांधली की गई। इन हालात में सुप्रीम कोर्ट इस आइनी खिलाफ वर्जी और अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। ताहम दस्तावेज़ात की तस्दीक कराने की बजाय अटार्नी जनरल ने एक जज को शिकायत कुनंदा बनाने की ज़रूरत महसूस की और चीफ जस्टिस ने फौरी तौर पर अटार्नी जनरल से इत्तफाक कर लिया और अकेले ही हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा कहते हैं कि एक जज को वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ केसेस सुनने से भी रोक दिया गया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि यह जुडिशल प्रॉपर्टी डेकोरम और तहम्मुल के उसूल के ख़िलाफ़ है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने इख्तलाफी नोट में शिकायत और शिकायत कुनंदा की भी तारीफ़ की है। ये 2 अल्फाज इस्तेमाल हुए थे, कंप्लेनेंट और कंप्लेंट, तो इसकी तशरीह भी उन्होंने की है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने
11 फरवरी को होने वाली समाअत के हवाले से लिखा है कि चीफ जस्टिस ने इनफरादी तौर पर यह करार दिया कि एक जज वज़ीर आज़म से मुतल्लिक़ केस नहीं सुन सकते। इस ज़िम्मन में बेंच के दीगर जजेस की राय भी नहीं लेगी और चीफ जस्टिस उठकर खड़े हो गए, जिससे दीगर जजेस भी उठने पर मजबूर हुए। इस शाम मीडिया पर शोर देखा कि एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को मीडिया से पता चला, हालांकि वो हुक्म बेंच की तरफ से जारी किया गया था। इसके बाद मैंने 12 फरवरी को रजिस्ट्रार को ख़त लिखा। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रजिस्ट्रार को लिखा गया ख़त भी इख्तलाफी नोट में शामिल किया गया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ख़त का जवाब नहीं दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 4 सवालात के जवाब देने की हिदायत की गई थी, जिसमें पहला सवाल ये था कि मुझे फ़ैसला क्यों नहीं भिजवाया। दूसरा सवाल यह था कि फ़ैसला दूसरे सीनियर जजेस को भिजवाने की तयशुदा प्रैक्टिस क्यों नहीं की गई। सवाल नंबर 3 था कि वो फ़ैसला मेरे पढ़ने से कबल मीडिया को क्यों जारी किया गया और मुझे उस फैसला से इत्तफाक या इख्तलाफ करने का मौका क्यों नहीं दिया गया। सवाल नंबर 4 ये था कि फ़ैसला मीडिया को जारी करने का हुक्म किसने दिया था। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस की फ़ाइल फराहम की, जिसमें ये एंट्री चशम कुशा है जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रजिस्ट्रार के ख़त का हवाला देकर लिखा है कि आम तौर पर जजेस के दस्तखत के बाद फ़ैसले मीडिया को जारी होते हैं और वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं। इस केस में चीफ जस्टिस या जजेस के पर्सनल सेक्रेटरी की ज़बानी पर ऐसा किया जाता है। सिर्फ ये फ़ैसला अक्सरीती जजेस के दस्तखतों के बाद वेबसाइट पर लोड किया गया और ये फ़ैसला अभी दफ्तर के कब्ज़े में भी नहीं है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आर्डर लिखा है कि ऐसी कोई नज़ीर नहीं है कि एक जज के दस्तखत के बगैर जारी किया गया कोई हुक्म कानूनी हुक्म कहलाता हो, इसलिए वेबसाइट पर अपलोड किया गया हुक्म मुकम्मल नहीं है। हर फैसले में एक या ज़्यादा जजेस के इख्तलाफी नोट हो तो उसको भी फैसले में शामिल करके अलग लिखा जाता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया। इस मामले में 4 जजेस ने अपने साथी जज के ख़िलाफ़ एक हुक्म लिखा है, इसलिए ये अदालती हुक्म नहीं है। इसलिए फाजिल जजेस को अपने हुक्म पर दोबारा नज़र सानी करनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने इख्तलाफी नोट में फैसला वेबसाइट पर अपलोड करने के वक्त के बारे में भी लिखा है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तरफ से दी गई दस्तावेज़ात की तस्दीक ना करने के हवाले से भी उन्होंने एक पैराग्राफ में लिखा है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मज़ीद लिखा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म नहीं बल्कि सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें देगर 13 अफराद के साथ वज़ीर आज़म को भी फ़रीक बनाया गया था। अगर वज़ीर आज़म को फ़रीक बनाना वजह थी तो वो फ़रीक बेंच के 3 जजेस भी थे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल का हिस्सा रहने वाले 3 जजेस भी उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने केस सुना। जस्टिस काजी फायज़ ईसा मज़ीद लिखते हैं कि वो इमरान खान को ज़ाती तौर पर नहीं जानते, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं कि ज़ाती तौर पर उनसे मुताल्लिक़ जानिबदाराना रवैया रखूं, और मुझे वज़ीर आज़म से कोई ज़ाती अनाद भी नहीं है। मैं गैर जानिबदार रहते हुए फ़ैसले करने की सलाहियत रखता हूँ। अगर इसमें कामयाब नहीं होता तो आइन, हलफ, ज़मीर और ईमान की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होऊंगा। ना मेरे भाइयों से मुझसे कोई गिला है और न मुझे उनसे कोई गिला है। यकीनन ये बात उन्होंने अपने साथी जजेस के बारे में कही होगी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि जानिबदारी का इल्ज़ाम पहले लगाया जाना चाहिए था, यानी कि इसकी समाज से पहले लगाया जाना चाहिए था, और अगर इमरान खान जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाना चाहते थे तो उन्हें खुद लगाना चाहिए था। फाजिल अटार्नी जनरल वज़ीर आज़म के ज़ाती वकील नहीं हैं, वो मुल्क के लॉ ऑफिसर हैं। इस हवाले से उन्होंने आईनी अदालत का एक फ़ैसले का हवाला भी दिया है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा मज़ीद लिखते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी जज पर पाबंदी लगाकर वज़ीर आज़म को सपोर्ट नहीं दे सकते, और ना ही आइन या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जज अपने साथी जजेस के दिलों में झांकें और ये तय करें कि वो किसी के ख़िलाफ़ जानिबदारी का मुजाहरा कर रहा है। सिर्फ अल्लाह जानता है कि दिलों में क्या है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मज़ीद लिखा है कि चीफ जस्टिस ने
किसी को सुने बगैर नॉन इशू उठा दिया, हालांकि उन्होंने कभी भी जानबदार होने का सवाल किसी ने भी जानबदार होने का सवाल नहीं उठाया। इख्तलाफी नोट में जस्टिस काजी फायजी ईसा ने तकरीबन 1 दर्जन से जायद अदालती फैसलों और इस्लामी कानून का हवाला भी दिया है और आईन पाकिस्तान के 9 आर्टिकल्स का हवाला भी दिया है। जस्टिस काजी फायजी ईसा ने फैसले के पैराग्राफ नंबर 32 में अनस्ट्रक्चर्ड सवाबदीदी इख्तियारात के नुकसान भी बताए हैं। उनका कहना है कि अगर चीफ जस्टिस ने किसी बेंच की तश्कील तब्दील करना हो तो उसकी कोई वजह ज़रूर होनी चाहिए। जस्टिस काजी फायजी ईसा का मजीद कहना है कि हलफ ये तकाजा करता है कि जज अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए आईन और कानून के मुताबिक तमाम मुकदमा सुनेगा और हर सूरत लोगों की बेहतरी के लिए फैसले करेगा, जिनमें इमरान खान ज़ाती तौर पर और बतौर वज़ीर आज़म भी शामिल होगा। जस्टिस काजी फायजी ईसा का कहना है कि अगर किसी जज को किसी किस्म के मुकदमा सुनने से रोका जाएगा तो ये टैक्स देने वालों के पैसे का ज़िया होगा, क्योंकि जिस मकसद के लिए वो पैसे अदा कर रहे हैं वो चीज़ उनको नहीं मिल रही। जस्टिस काजी फायजी ईसा ने फैसले के पैराग्राफ नंबर 34 में इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के बारे में लिखा है कि शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो अपने उमूर की अंजाम दही के लिए तमाम इंतज़ामी इदारों की मावनत हासिल करे। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात भी करवाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात से कबल फर्ड्स जारी करने का नोटिस नहीं लिया, इसलिए ये अदालत इस मामले और उन दस्तावेज़ात को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए कि कहीं आइन की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। जस्टिस काजी फायजी ईसा ने लिखा है कि अरकान पार्लिमान को पैसा देने का रवाज साबिक फौजी जनरल ज़ियाउल हक ने मुतारफ़ करवाया था। जस्टिस काजी फायजी ईसा ने अरकान पार्लिमान को तरक्याती फंड्स देने को मुल्क की कीमत पर ज़ाती सपोर्ट करार दिया है। उन्होंने कहा है कि 2 रुकनी बेंच ने इस ज़िमन में मिलने वाले मवाद को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत बुनियादी इंसानी हुकूक के मुकदमे में तब्दील किया था। जस्टिस काजी फायजी ईसा का कहना है कि इससे कबल एक टैक्स केस में सुप्रीम कोर्ट व्हाट्सएप पर मिलने वाले मवाद को बुनियादी तौर पर बुनियादी इंसानी हुकूक के मुकदमे में तब्दील कर चुकी है। जस्टिस काजी फायजी ईसा ने वज़ीर आज़म को हासिल इस्तिस्ना के हवाले से आइन के आर्टिकल 248 के बारे में लिखा है कि दौरान समाअत फाजल जज ने आर्टिकल का हवाला दिया, ताहम इस आर्टिकल को तफसील से डिस्कस नहीं किया। ताहम इस अदालत ने करार दिया है कि सिर्फ आइनी और कानूनी इक़दामात को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और अगर किसी ऑफिस का गलत इस्तेमाल होता है, सियासी या ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, दोस्तों को अमीर बनाने के लिए रिश्वत लेने, करप्ट प्रैक्टिस और अरकान पार्लिमान को ख़रीदने या दबाव में लाने के लिए अवामी फंड्स दिए जाते हैं, तो इस सूरत में आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। जस्टिस काजी फायजी ईसा ने अदालती फैसले में 20 नकास और खामियों की निशानदेही की है, जिसमें पहली खामी उन्होंने ये बताई है कि जस्टिस मकबूल बाकर को बेंच से अलग कर दिया गया। किसी ने बेंच के किसी भी जज की गैर जानबदारी पर सवाल नहीं उठाया। चीफ जस्टिस ने बेंच के दीगर अरकान से मशावरत किए बगैर ये कह दिया कि जज इस केस को नहीं सुनेंगे जो वज़ीर आज़म से मुतल्लक होगा। चीफ जस्टिस ने बेंच के एक जज की जानबदारी का नॉन इशू उठाया, ये भी उन्होंने खामी लिखी है। इस जज को तहरीरी यानी चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा को तहरीरी हुक्म का हिस्सा भी नहीं बनाया, ये भी फैसले की खामी है। जस्टिस काजी फायजी ईसा कहते हैं कि एक सीनियर जज को बाईपास करके फैसला जूनियर जज को भिजवाना दस्तखत के लिए, ये भी खामी है। अदालती आर्डर लिखा जस्टिस काजी फायजी ईसा कहते हैं कि अदालती आर्डर लिखा ही नहीं गया था, इसलिए इस पर दस्तखत नहीं किए गए, इसलिए कोई अदालती आर्डर मौजूद ही नहीं है और ये मामला ज़ेर समाअत है। जस्टिस काजी फायजी ईसा कहते हैं कि आर्डर एक जज को दिखाए बगैर वेबसाइट पर अपलोड किया गया और एक जज को फैसले से अपने इत्तफाक या इख्तलाफ बारे अपनी राय देने का मौका नहीं दी गया, ये भी कानूनी खामी है। फैसले के अंदर तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक फ़ैसले की फ़ाइल जज को नहीं भिजवाई गई, ये भी खामी है। जज ने वो फ़ैसला मीडिया के ज़रिए सुना। जज को फ़ैसला और केस की फ़ाइल देखने के लिए रजिस्ट्रार को ख़त लिखना पड़ा।
अदालत की तरफ से जारी किए गए फैसले का पैराग्राफ नंबर 6 गैर आइनी है क्योंकि ये आइन के तहत हासिल करदा दायरा कार के ज़रिए जारी नहीं किया गया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा कहते हैं कि आर्डर का पैराग्राफ नंबर 6 इस अदालत के फैसलों की रोशनी में नहीं है। आर्डर का पैराग्राफ नंबर 6 आइन के आर्टिकल 179 पर पूरा नहीं उतरता। आर्डर का पैराग्राफ नंबर 6 तयशुदा कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं है। आर्डर का पैराग्राफ नंबर 6 इस्लामी कानून के तकाज़ों के मुताबिक भी नहीं है और आर्डर का पैराग्राफ नंबर 6 जजेस के हलफ के मुताबिक भी नहीं है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इन 20 खामियों के बाद लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का रिपोर्ट होने वाला बयान जिसमें उन्होंने सेनेट इंतखाबात से कबल रकम देने की बात की थी, वो इस वजह से उन्हें 2 रुकनी बेंच की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, लेकिन केस दुरुस्त अंदाज में निपटाया नहीं गया। ये भी खामी है। पैराग्राफ नंबर 6 में जज के खिलाफ पास किया गया हुक्म अदलिया और सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने की अंडरमाइन करता है, जो भी फैसले की एक खामी है। पैराग्राफ नंबर 39 में जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा है कि करप्ट प्रैक्टिस और रिश्वत को रोकने की एक कोशिश की गई थी, जिसका इख्तिताम जज की तज़हीक और किसी केस को सुनने से रोकने पर हुआ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये एक जज और उससे बुरे सलूक से मुतल्लिक मामला नहीं है, बल्कि इससे भी बड़ी अहम बात है, क्योंकि आइन अवामी हुकूक और उनके पैसों से मुतल्लिक है। ये मामला है वो सब कुछ जो मेरे पास है और अल्लाह की मदद नुसरत के साथ मैं आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा और ऐसा करता रहूँगा। इख्तिलाफी नोट के आखिरी पैराग्राफ नंबर 40 में जस्टिस काजी फायज़ ईसा लिखते हैं कि ये आर्डर लिखना मेरे लिए इंतहाई अज़ियतनाक है। अगर इसमें कोई चीज़ किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बनती है तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। इस्तीफ़ा जमा कराने पर गौर किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुझे उम्मीद करते हुए ये कहना चाहिए कि अनस्ट्रक्चर्ड सवाबदीद ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसने ना तो किसी इदारे की खिदमत की है और ना ही अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ किया है। अपने फ़ैसले का इख्तिताम मुस्बत नोट के साथ ये कहते हुए करता हूँ कि बेहतरीन इदारे वो होते हैं जहाँ शफाफियत के साथ खड़ी होती है। मैं दुआ करता हूँ कि यह इदारा हर तरह के आइनी खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ खड़ा हो और ताकत के गलत इस्तेमाल से अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे। नाज़रीन, ये था फैसले का इख्तिलाफी नोट जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा है, उसका मुकम्मल मतन। उम्मीद है कि आपको ये मालूमात पसंद आएंगी और आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो।